میرے ابا گاؤں میں گھوم پھر کر سودا بیچا کرتے تھے۔ وہ ہر ہفتے شہر جا کر مال لاتے اور روزی کمانے کا جتن کرتے۔ ابا اخلاق والے تھے، ان کا مال جلدی اچھے داموں بک جاتا تھا۔ اس بار شہر گئے تو واپسی میں مال کے ساتھ ایک نوجوان کو بھی لے آئے۔ بتایا کہ اس کا نام فاضل ہے اور اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں۔ برصغیر کی تقسیم کے وقت فسادات میں فاضل کے ماں باپ دونوں مارے گئے۔ اس ننھے بچے کی زندگی تھی کہ یہ بچ گیا۔ یہ لاشوں کے درمیان سو رہا تھا کہ ایک قافلے کا ادھر سے گزر ہوا، تبھی اس کی جاگ کھل گئی۔ وہ رونے لگا تو قافلے میں سے ایک شخص نے اس کو لاشوں کے درمیان سے اٹھا لیا اور وہ فاضل کو پاکستان لے آئے۔ بعد میں یہ لوگ لائل پور میں آباد ہو گئے۔ 5 سال تک یہ بچہ انہی مہربان میاں بیوی کے پاس رہا۔ ایک روز میاں جی ایک ویگن کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے اور رونے دھونے کو بیوی اکیلی رہ گئی۔ اب فاضل ہی اس غریب بیوہ کا سہارا تھا جس نے اس کو پال پوس کر جوان کیا، لیکن وہ غریبی کے باعث اسے تعلیم مڈل تک ہی دلا سکی۔ جب فاضل 14 برس کا ہو گیا تو مہربان پالنے والی خاتون جس کو وہ ماں جی پکارتا تھا اسے چھوڑ کر چل بسی۔ ماں جی کو بخار ہوا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہ رہی۔ خدا جانے کیسی بیماری لاحق ہوئی کہ 6 ماہ بستر پر پڑے رہ کر وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب فاضل کا اس دنیا میں کوئی نہ رہا۔ اس نے محلے کے ایک شخص کی دکان پر ملازمت کر لی جو اس کے حالات جانتا تھا۔ اسی کے پاس رہتا اور کھانا بھی اسی دکاندار سردار جی کے گھر سے کھاتا تھا۔ سردار جی کی ایک بیٹی تھی چندو، وہ بھی تیز ترار اور چلتی پرزا تھی۔ خوبصورت تو تھی لیکن اس کے لچھن اچھے نہیں تھے۔ چندو کا محلے کے ایک آوارہ چھوکرے سے یارانہ تھا جس سے وہ چھپ چھپ کر ملتی تھی۔ اس امر کا علم فاضل کے سوا کسی کو نہ تھا کیونکہ وہ ملاقاتوں کے لیے فاضل کی مدد لیا کرتی تھی۔ یہ کم سن لڑکا بھلا اپنے مالک کی بیٹی کا کہنا کیوں کر نہ مانتا، کیونکہ چندو اس کو دھمکاتی، اگر تم نے میرا یہ خط غلام عباس تک نہ پہنچایا تو میں تم پر چوری کا الزام لگا کر تم کو ابا کی دکان سے ہی نہیں اپنے گھر سے بھی نکلوا دوں گی۔ فاضل بیچارے کے پاس تو رہنے کا ٹھکانہ بھی نہ تھا، وہ کہاں جاتا؟ بس چندو عباس سے رابطے اور خط و کتابت کے لیے اس کو استعمال کرتی رہتی۔ وہ ڈرتا بھی تھا اگر سردار جی کو علم ہو گیا تو وہ اس کی جان لے لیں گے، لیکن پھر پیٹ کی بھوک آڑے آ جاتی۔ چندو کی ماں مر چکی تھی۔ گھر میں اس کی دادی اور ادھیڑ عمر بن بیائی پھوپھی ساتھ رہتی تھی۔ فاضل کو کھانا چندو ہی پکا کر دیا کرتی تھی۔ شومئی قسمت، ایک دن چندو نے جو خط عباس کو پہنچانے کے لیے فاضل کو دیا وہ کسی طرح سردار جی کے ہاتھ آ گیا۔ تبھی انہوں نے اسے خوب مارا اور کھڑے کھڑے نکال دیا۔ جس روز یہ واقعہ ہوا ابا مال خریدنے سردار جی کی دکان پر پہنچے تھے۔ اسی وقت سردار جی فاضل کی پٹائی کر رہے تھے۔ ابا نے اس کو ان سے چھڑایا۔ وہ بری طرح رو رہا تھا اور منتیں کر رہا تھا کہ مجھ کو نہ نکالو سردار جی، میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ اس کے بلکنے اور منتیں کرنے پر ابا کو رحم آ گیا۔ ان کو اندازہ تھا کہ یہ لڑکا بذات خود برا نہیں ہے، مگر چندو چنڈال کے دباؤ میں آ کر اس کا کہا ماننے پر مجبور تھا۔ بہرحال ابا کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ انہوں نے اس روتے دھوتے لڑکے کو ہمراہ لیا اور گھر آ گئے۔ میں فاضل کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اچھی صورت تھی مگر اعتماد کی کمی تھی، سہما سہما اور کم گو۔ میری طرف تو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ بیٹی اس کا کوئی نہیں ہے، یہ اب ہمارے گھر میں رہے گا اور کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ میں نے اسے بیٹا بنا لیا ہے، اس کا خیال رکھنا اور روٹی وقت پر دینا۔ پہلی نظر میں فاضل مجھ کو اچھا لگا۔ میں واقعی اس کا خیال رکھنے لگی اور کھانا بھی اسے وقت پر دینے لگی۔ جس طرح ابا اس کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آتے تھے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرا باپ اس نوجوان کو بیٹا نہیں بلکہ داماد بنانے کے لیے لایا ہے۔ میرا اندازہ درست
खुश था। अब्बा ने भी इस काम में देर ना करी और 2 माह बाद ही मेरा निकाह फाजिल से कर दिया, क्योंकि उनको मेरी बहुत फिक्र थी। मैं बिन माँ की बच्ची थी और माँ ही वो हस्ती होती है जो बेटियों के रिश्ते नाते करने में अव्वलीन किरदार अदा करती है। ये फर्ज अब अब्बा के कंधों पर था, सो उन्होंने घर में किसी कहानी के जन्म लेने से पहले ही हम दोनों को निकाह के बंधन में बांध दिया। अब्बा का ख्याल दुरुस्त निकला। फाजिल अच्छा लड़का था, वो 8वीं पास था। अब्बा ने इसको स्कूल में दाखिला दिलवा दिया ताकि मैट्रिक कर ले। इनका ख्याल था कि मैट्रिक कर लेगा तो किसी स्कूल में टीचर हो जाएगा या दूसरी कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी पर लग जाएगा, क्योंकि उस जमाने में मैट्रिक की तालीम भी बहुत वक़्त रखती थी। मैट्रिक पास कर लेने के बाद अब्बा ने काफी कोशिश की कि फाजिल टाइप सीख ले ताकि कहीं उसको क्लर्की ही मिल जाए, लेकिन नौकरी ना मिली। प्राइवेट इदारों में कभी आर्जी काम मिल जाता और 4 पैसे कमा लेता और कभी फारिग घर बैठा रहता। यूं हमारे घर कभी फाका और कभी फाका होता था। तब अब्बा हमारा खर्चा बर्दाश्त करते थे। मेरे वालिद को हज पर जाने का बहुत अरमान था। उन्होंने इसके लिए काफी रकम जोड़ ली। तब एक ऐसा दिन आया कि उनकी मुराद बर आई और वो हज पर चले गए। खुदा की मर्जी कि हज के दौरान मक्का मुअज़्ज़मा में उनकी वफात हो गई। हमको तो बस उन्हीं का आसरा था। सो खत्म हुआ और अब अब्बा के बगैर हमारी मुआशी जिंदगी कटी पतंग की तरह गैर यकीनी हालात में इधर उधर डोलने लगी। फाजिल को काम ना मिलता तो नौबत फाकों तक आ जाती। पड़ोसी अच्छे थे और हमारे हालात जानते थे। अब्बा के लिहाज से वो मदद करते थे। अपने रिश्तेदार ऐसे मौकों पर कन्नी कतरा जाते हैं, वो तो फिर पड़ोसी थे। कोई कब तक गुर्बत में किसी का साथ देता है। हमारे 2 बच्चे हो चुके थे। अपनी तकलीफ सह ली जाती है, मगर मासूम बच्चों की तकलीफ ना सही जाती थी। अपने गाँव में औरतों का लोगों के घरों में जाकर काम करना मायूब ख्याल किया जाता था। इसलिए हमने फैसला किया कि शहर चले जाते हैं, वहाँ कोई काम मिल जाएगा। हम शहर आ गए। किराए का मकान तो मिल गया, मगर हर माह किराया अदा करना मुश्किल अमर था। फाजिल ने एक ठेकेदार के पास मुंशी की मुलाजमत कर ली, मगर तनख्वाह कम थी, लिहाजा खाने पीने के साथ किराया अदा करना महाल हुआ। तो मैंने कोठियों में काम करने की ठान ली। फाजिल से इजाजत ली और काम ढूंढने निकली। एक कोठी का गेट बजाकर पूछती थी, काम वाली चाहिए, मुझे काम की जरूरत है। बदकिस्मती कि हर बंगला से यही जवाब मिला, अभी जरूरत नहीं है, हमारे पास मुलाजमा मौजूद है। एक रोज ऐसे ही मैं काम तलाश करने के इरादे से घर से निकली थी कि 2 शख्स अपने पीछे चलते देखे। मैंने इनकी जाने तवज्जो ना की और नजदीकी कोठी का दर खटखटाया। एक औरत ने गेट खोला और पूछा, कौन हो, किससे मिलना है? मैंने कहा कि काम चाहिए। वो औरत इस घर की मुलाजमा थी और वो 2 शख्स जो मेरे पीछे चले आ रहे थे, ये इन्हीं का घर था। अभी मैं मुलाजमा से बात कर रही थी कि वो गेट पर पहुंच गए। औरत ने अदब से सलाम किया और उनको रास्ता दिया। ये कौन है, क्या कहती है? इनमें से एक ने सवाल किया। ये जरूरतमंद है और काम का पूछ रही है, उनकी मुलाजमा ने जवाब दिया। अच्छा, इसको अंदर ले आओ। ये कहकर वो दोनों कमरे में चले गए और मुलाजमा ने मुझे बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। आध घंटे में वहाँ बैठी इंतजार करती रही। वो औरत किचन में चली गई। उसने नाश्ता और चाय बनाई। दोनों मर्दों को चाय देने के बाद वो लौटी तो उसके हाथ में प्लेट थी जिसमें 1 रोटी और 2 कबाब थे जो उसने मुझे दिए। बोली, लो ये खा लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ। मुझे ये नाश्ता नहीं खाना, घर में मेरे बच्चे अकेले हैं। तुम मुझे बताओ काम मिल सकता है या नहीं, ताकि मैं कोई और घर देखूं। काम मिल जाएगा, जरा सब्र करो। खान लोग नाश्ता कर लें, फिर बात करते हैं। तुम भी तब तक 2 निवाले खा लो। चलो खाओ, उसने अपनायत से कहा। मैंने नाश्ता नहीं किया था। शोहर और बच्चों को खिलाकर मैं ऐसे ही निकल आई थी। सो रोटी कबाब खाकर खुदा का शुक्र अदा किया। जब नाश्ता हो चुका, उस खानू ने आपस में कुछ बातें की। फिर मुलाजमा से कहा, उस औरत को बुलाओ और पूछो उसको क्या काम चाहिए। वो मुझे अंदर हाल नुमा कमरे में ले गई जहाँ वो बैठे थे। मैंने उनको
बताया कि मैं जरूरतमंद हूँ और मुझे घरेलू काम चाहिए। उन्होंने कहा तुम कल आना, हमारे एक दोस्त की बीवी को इन दिनों मुलाजमा की जरूरत है, लेकिन उनका घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है। कल मैं इब्राहिम खान से बात करूंगा, फिर तुमको उसकी बीवी के पास पहुंचा दूंगा। वहाँ से तुमको अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। बाकी बातें तुम उनसे खुद तय कर लेना। अल्लाह की आस पर मैं अगले दिन सुबह 9 बजे उसी बंगले पर दोबारा गई। उसी औरत ने गेट खोला जिसने गुज़श्ता कल खोला था। वो मुझे अंदर ले गई और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। कहने लगी अभी इब्राहिम साहब और उनकी बेगम आ रहे हैं। ये हमारे खान के रिश्तेदार हैं, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। आज भी मुझे आधा घंटा इंतजार करना पड़ा। फिर एक कार के गेट पर रुकने की आवाज आई। दो मियाँ बीवी घर के अंदर आ गए, जिनका पुरतपाक इस्तकबाल मालिक मकान ने आगे बढ़कर किया। इस औरत ने जो मुलाजमा थी मेरा तारुफ आने वाली खातून से करवाया, जो लिबास और जेवरात से बहुत अमीर नजर आ रही थी। मुलाजमा ने कहा ये हमारे खान की खाला की बेटी है और इनको सारे दिन के लिए मुलाजमा चाहिए। उसने कहा मैं सुबह से शाम 4 बजे तक काम कर सकती हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझको घर पर अपने बच्चों को देखना होगा और उनका खाना वगैरह भी बनाना होगा। खातून जिसका नाम जरीना था कहने लगी ठीक है, तुम शाम को 4 बजे छुट्टी कर जाना। तनख्वाह क्या लोगी? आप जो दे देंगी 1000 रुपया। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया, क्योंकि उन दिनों तो 1 रुपया आज के 100 रुपए के बराबर हुआ करता था और पूरे महीने की उजरत मुलाजमा को 200 से ज्यादा नहीं मिलती थी। खुशी से मेरी आंखें चमक उठी और दिल बिलियों उछलने लगा। मैंने कहा मंजूर है बीबी साहिबा, आप अपना घर दिखा दें, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। थोड़ा सा इंतजार करो, मैं अपने भाई से बात करके आती हूँ। वो ड्राइंग रूम में चली गई। 15 मिनट बाद शोहर के साथ बाहर निकली और कहने लगी चलो गाड़ी में बैठो और मेरा घर देख लो। मैं इनके साथ गाड़ी में बैठ गई। 20 मिनट के फासले पर उनका घर था। बड़ा सा शानदार बंगला, आला फर्नीचर और भी वहाँ मुलाजमीन थे। बहरहाल मैंने अच्छी तरह रास्ता ध्यान में रखा था। सीधी सड़क थी और एक जगह बड़ा सा पार्क आता था, उसी के पास उनका घर था। पहली बार ही मुझको रास्ता याद हो गया। उस रोज तो मैंने काम से माजरत कही, क्योंकि फाजिल को बताना जरूरी था। अगले दिन आने का वादा करके मैं घर आ गई। बेगम बहुत अच्छी और मेहरबान थी, सखी इतनी के फल फ्रूट और बचा हुआ इतना खाना रोज शाम को दे देती कि मुझे मेरे शोहर और बच्चों को पेट भर खाने के बाद भी बच रहता था, जो मैं अपनी पड़ोसन को दे दिया करती थी। मुझे यहाँ काम करते हुए 6 माह गुजरे थे कि इस खातून ने एक रोज कहा कि हमारे घर कुछ मेहमान आ रहे हैं, कल तुम जल्दी आ जाना। मैं वक्त से 1 घंटा कबल ही सुबह को काम पर पहुंच गई। ये लोग पिशावर से आए थे और खान साहब के दोस्त थे। इनके साथ कोई औरत ना थी और ये 2 मर्द हजरात ही थे। जब दावत खत्म हो गई तो शाम काफी गहरी हो गई। अंधेरा फैल रहा था। मुझे अपने बच्चों की फिक्र थी। मैंने बेगम को कहा कि अब मुझको जाने दे, पैदल घर जाने में घंटा लग जाएगा। बर्तन मैं सुबह आकर धो लूंगी। वो कहने लगी जमीला, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे मेहमानों के साथ कार पर चली जाओ। ये तुमको तुम्हारे घर के पास छोड़ देंगे। ये मेरे भाई खान वलीद के घर जा रहे हैं, जहाँ तुम्हारा घर करीब है। पैदल चलते चलते तुमको रात हो जाएगी। मैंने सोचा कि ये तो मेरी बेगम और साहब के वाकिफ लोग हैं और जा भी उसी तरफ रहे हैं। ठीक है बीबी साहिबा, मैं इनके साथ चली जाती हूँ। बेगम ने मुझे कुछ रुपए बतौर इनाम दिए और मैं इन लोगों की कार में चढ़ बैठी। गाड़ी में अपने ख्यालों में बैठी थी, रास्ते के बारे में गौर न किया। जब एहसास हुआ कि काफी देर हो गई है, खिड़की से देखा कार तो किसी और रास्ते जा रही थी। ये लोग उधर को नहीं जा रहे थे जिधर मेरा घर था। आप किधर जा रहे हैं?
मैंने घबरा कर पूछा, हमें कुछ सामान उठाना है जो वलीद खान को पहुंचाना है। सामान उठा लें तो उस तरफ जाएंगे जिधर तुम्हारा और वलीद खान का घर है। ये सुनकर मैं परेशान हो गई, पछताने लगी कि क्यों नाहक इनकी गाड़ी में बैठी। इससे तो अच्छा था पैदल चली जाती। अब फाजिल भी परेशान हो रहा होगा, क्या करती। ये साहब लोग थे, मजबूरन खामोश हो गई। तकरीबन 1 घंटा बाद एक वीरान सी जगह पर एक मकान के सामने उन्होंने गाड़ी रोकी। मुझे कहा, गाड़ी से उतर आओ, कुछ सामान घर से उठाकर गाड़ी में रखना है, वो रखवा लो। मैं गाड़ी से उतरी और उनके हुक्म की तामील की। मकान के अंदर काफी बंद डब्बे पड़े हुए थे। उन्होंने इशारा किया, ये डब्बे गाड़ी की डिक्की में रखने हैं। मैं एक डब्बे की तरफ बढ़ी तो अचानक ही इनमें से एक ने मुझे काबू करके मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया। मुझे चक्कर आया और बेहोश हो गई। फिर नहीं मालूम कैसे सफर कटा और ये मुझे कहां से कहां ले आए। ये एक अजनबी इलाका था और जिस मकाम पर मैं थी वहां मुझसी और भी थी, मासूम बच्चे भी थे जिनकी बुझी हुई सूरतें देखकर तो मैं अपना दुख भूल गई। मैंने 2 छोटे लड़कों को गोद में बिठाया तो वो मेरे सीने में मुंह छुपाकर रोने लगे। मुझको अपने बच्चे याद आ रहे थे जिनसे नागहानी बिछड़ गई थी। यहीं हम सब कैदी थे और निगरान बहुत संग दिल थे। उनके कदमों की आहट सुनकर कैदी औरतों और मजलूम बच्चों की जान जाती थी। खाना ऐसे देते कि एक दिन खाने के बाद कई दिन तक फिर खाना खाने को जी नहीं चाहता था। सालन दुम्बे की चर्बी में तैयार किया जाता। यहाँ से भागने का कोई रास्ता न था। भागने की कोशिश करने वालों के हाथ पांव तोड़ दिए जाते थे। कुछ दिन तक इल्म न हो सका कि हमको क्यों और कहाँ रखा गया है। एक रोज एक शख्स के मुंह से किला जानी खलील का नाम सुना कि सबको वहां ले जाएंगे जहां हम जैसों की फरोख्त के लिए मंडी लगती थी और खरीदने को आने वाले अपने अपने अगराज और मकासद की खातिर इंसानों को खरीद कर ले जाते थे। जिस रोज हमको इन्होंने किला जानी खलील लेकर जाना था, शुनीद हुई कि रेड होने का अंदेशा है, लिहाजा ये हमको नहीं लेकर गए। अगले दिन सरगना आया और मुझे हुक्म दिया कि तुम चलो। वो मुझको कहीं फरोख्त करने नहीं बल्कि अपने घर ले गया, क्योंकि उसकी बीवी और बच्चा बीमार था। उनको एक खिदमतगार की जरूरत थी। उसका घर कहीं पहाड़ी गांव में था। मैंने उनकी बहुत अच्छी देखभाल और खिदमत गुजारी की तो सरगन्ने की औरत खुश हो गई। उसने एक रोज मेरा हाल पूछा। उसके चेहरे पर नरमी देखकर मेरे दिल के दुख आंखें मूंद लेते थे। आज जो हमदर्दी की तो मैंने अपना दुख उसको बता दिया। उसका बच्चा जो बीमारी से मरते मरते बचा था वो मुझसे बहुत हिल गया था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, बीबी, अपने इस बच्चे के सदके तुम मुझे वापस वहां ना भेजना जहां से बुलाया है। इसको रहम आ गया। कहने लगी, ठीक है, नहीं भेजूंगी, मगर तुम भी धोखा ना करना और यहाँ से भाग निकलने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम जानती हो ना कि मेरे खान का गुस्सा एक गजब का है। वो तुमको ही नहीं मुझको भी माफ ना करेगा। इन्हीं दिनों इनके अजीजों में शादी थी जो पिशावर में रहते थे। उसने शोहर से कहा कि इनको हम अपने साथ लिए चलते हैं क्योंकि हमारा बच्चा इससे हिला हुआ है। ये ना होगी तो मुझको बहुत परेशानी होगी। वो राजी ना हुआ, मगर जब वो जाने लगे तो बच्चा मुझसे लिपट गया, बलिक बलिक कर रोने लगा। वो मुझको नहीं छोड़ रहा था। तब औरत ने मिन्नत की कि तुम इसको मेरे साथ जाने की इजाजत दे दो खान, वादा करती हूँ कि इसकी सख्त निगरानी करूंगी। 2-3 रोज की तो बात है। अपने बच्चे की वजह से खान ने जाने कैसे मुझको बीवी के साथ पिशावर जाने की इजाजत दे दी। बीवी से कहा, ख्याल रखना वहाँ ये किसी से फालतू कलाम न करे। औरत ने मुझे ताकीद की, ख्याल करना, मेरे साथ बददियानती मत करना वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने वादा किया, यकीन दिलाया कि मैं ना तो भागूंगी और ना वहाँ किसी से कलाम करूंगी। पिशावर में ये जहाँ ठहरे थे ये जगह बस अड्डे से ज्यादा दूर ना थी। यहाँ भी खान के
कुछ लोग मेरी निगरानी कर रहे थे। कई बार ख्याल आया ये मौका फिर न मिलेगा, यहाँ से निकल भागूं। फिर इन औरतों के किस्से याद आ गए जो भागने की कोशिश में पकड़ी गई थी और इनकी चीखें पहाड़ों ने सुनी थी। इन औरतों के पांव दागे गए थे। इन लोगों के चंगुल से निकल भागना कोई आसान काम न था। आंगन में शामियाना लगा था और खवातीन वहाँ रुश्ती की तकरीब से लुत्फ अंदोज हो रही थी। मैं मालकन के बच्चे को सीने से लगाए कमरे में सो रही थी। मेरे दिल से हुक उठी, सोचा कि और का बच्चा मेरे कलेजे से लगा है और मेरे अपने बच्चे माँ से दूर जाने किस हाल में हैं। मुझे अपने बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। यूं महसूस हुआ कि जैसे वो माँ को याद करके रो रहे हों। शायद वो रातों को उठ उठ कर मुझको सहन में ढूंढते होंगे। तभी तड़प कर उठ बैठी। ये मौका फिर मेरी जिंदगी में नहीं आएगा। मेरा गांव चंद मील के फासला पर ना था मगर अड्डा करीब था। तभी ममता ने मेरी गैरत को एड़ लगाई। बच्चे पर अलविदाई नजर डालकर दालान में निकल गई जिसके आगे शामियाना तना हुआ था। दबे कदमों अकबी दीवार तक गई जहाँ चारपाई दीवार के साथ लगी हुई थी। इस पर पांव रखकर मैं साथ वाले घर में कूद गई। डर था कि इस घर वाले आधी रात को कहीं चोर चोर का शोर न मचा दें, तब मेरा क्या अंजाम होगा। मगर माँ की ममता में बड़ी ताकत होती है और इस वक्त मेरे बच्चों के चेहरे मेरे सामने थे। तभी माँ को कभी कभी अंजाम से बेनियाज होना पड़ता है वरना मार के सर नहीं होते। परली तरफ कूदने से मुझे चोट आई। थोड़ी सी आवाज भी हुई मगर इतनी नहीं कि शादी वाले घर में ये आवाज कोई सुन पाता। जिस घर में कूदी थी वहाँ एक औरत सहन में मुसल्ला बिछाए सजदा रेज थी। वो तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी। उसने सजदे से सर उठाया और मेरी तरफ देखा। शादी वाले घर से रोशनियां उसके आंगन में पड़ रही थी। उसने आवाज दी, कौन हो? मैंने उसके पांव पकड़ लिए। अम्मा मुझे पनाह दो, शोर ना करो, मैं मुसीबत में हूँ। उसने पास रखी टार्च को रोशन किया और मेरे चेहरे पर रोशनी पड़ते ही पहचान गई। उसने मुझको अपने घर के चौबारे से बराबर वाले घर के सहन में खान के बच्चे को खिलाते देखा था। बोली, तुम उनकी मुलाजमा हो? बच्चे की आया, हाँ, मगर इस वक्त मेरी जिंदगी खतरे में है। वो मुझको कमरे के अंदर ले गई। तब मैंने उसको मुख्तसरन बताया कि जिस मेहमान औरत के साथ यहाँ शादी में आई हूँ उसके खाविंद ने मुझको अगवा किया था। मेरे बच्चे मेरे बगैर बदहाल और शोहर बेचारा जाने किस हाल में होगा। मुझे यहाँ से सलामत निकल जाने का मौका दो। उसने मुझे कपड़े दिए। बोली, ये पहन लो और चादर में खुद को लपेट कर पू फुटने से कबल निकल जाओ। गली से सड़क पर निकलोगी तो आगे ही थोड़ी दूर बस अड्डा है, वहाँ से कोई बस पकड़ लेना। ये लो रुपए, लेकिन मुंह अंधेरे निकल जाओ मेरे घर के पिछले दरवाजे से। अब मजीद यहाँ मत रुको वरना पकड़ी जाओगी। अगर रास्ते में पकड़ी जाओ तो भी मेरा नाम मत लेना। हम इन लोगों से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते। मैंने जल्दी से कपड़े बदले, चादर लपेटी और उसी वक्त उनके अकबी दरवाजे से गली में निकल कर गलियों गलियों सड़क पर आ गई। आगे एक रक्षा वाला शायद अड्डे ही की तरफ जा रहा था। मुझे देखकर रक्षा रोका तो मैंने कहा कि मुझे बस अड्डे पहुंचा दो, लाहौर जाना है। उसने मुझे अड्डे पर पहुंचा दिया, टिकट भी लेकर दी और लारी पर बिठाकर चला गया। वो कोई शरीफ आदमी था। घर पहुंची तो लगा एक बड़ी कैद से निजात पाकर जन्नत की तरफ कदम बढ़ा रही हूँ। खुशी के आंसू गिराते हुए घर की दहलीज की तरफ कदम बढ़ा दिए। मगर ये क्या कि दर खुला था मगर आंगन में धूल उड़ा रही थी। फाजिल था और न बच्चे। सहन में चारपाई पड़ी थी और एक बूढ़ा आदमी इस पर बैठा हुक्का गड़गड़ा रहा था। एक कोने में बच्चों के कुछ टूटे फूटे खिलौने पड़े थे। कलेजा थाम लिया और बूढ़े से पूछा, बाबा जी, इस मकान में फाजिल और बच्चे रहते थे, वो कहाँ चले गए? कहने लगा, मालूम नहीं, मैं तो किरायादार हूँ। मोहल्ले वाले कहते हैं कि उसकी बीवी गुम हो गई तो वो नाउम्मीद होकर बच्चों के साथ कहीं चला गया है।
साथ वाली हमसाई के घर गई। उसने बताया कि बच्चे तुमको याद करके रोते थे और फाजिल इनको देखकर तड़पता था। वो किसी को बताकर नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। मेरी दुनिया अंधेर हो गई। जिनकी खातिर जान पर खेल कर यहाँ पहुंची, उनकी सूरतें भी देखनी नसीब न हुई। इसी पड़ोसन से कुछ रकम ली और अपने वालिद के घर आई। वहाँ ताला पड़ा था। फाजिल इधर भी नहीं आया था। यहाँ के लोगों को हमारे हालात के बारे में कुछ इल्म नहीं था। इसी गम में ऐसी बीमार पड़ी कि मौत आंखों के सामने रक्स करती नजर आने लगी। अपने गांव के खुदा तरस लोगों ने सहारा दिया, मेरा इलाज कराया। वो तो यही समझ रहे थे कि मैंने शोहर से बेवफाई की है, इसी वजह से वो बच्चे लेकर कहीं चला गया है। जब असल हालात इनको बताए, इन्हें मुझसे हमदर्दी हो गई। उन्होंने भी कोशिश की, मगर फाजिल और बच्चों का कहीं पता ना चला। कितने बरस गुजर गए फाजिल और बच्चों को ढूंढते हुए। अब तो कदम भी थक चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आता उनको कहाँ ढूंढूं। रूह में जो जुदाई के दर्द का जहन्नम दहका है, इसकी आग ठंडी नहीं पड़ती और आंसू जलती पर तेल का काम करते हैं। यूं लगता है जैसे फाजिल ने यही समझा कि मैं किसी के साथ चली गई हूँ, बच्चे छोड़कर भाग गई हूँ, उसके साथ बेवफाई की है, तभी उसने पलटकर खबर नहीं ली। अगर कहानी अच्छी लगी तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को